بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس لیسن میں اور آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پوئٹری سیکشن کی سیکنڈ پویم پڑھیں گے جس کا نام ہے احبو. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھیں، سلیبس کے بھی اور ایگزامز کی تیاری کے لیے بھی جو ویڈیو بنائے گئے ہیں وہ بھی دیکھیں. سارے ویڈیوز کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھیں. اور جو میں نے بک تیار کی ہے ایگزامز کی تیاری کے لیے اسٹڈی مٹیریل وہ بھی لے لیں. لیکن کہاں سے؟ امیزون پہ اویلیبل ہے جس کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور آپ امیزون پہ اظہار العربیہ لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بک آ جائے گی. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پوئٹری سیکشن کی سیکنڈ پویم احبو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربک سلیبس انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر تلنگانہ اسٹیٹ انڈیا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربک انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر میں آپ کو ٹوٹل 4 سیکشن پڑھنا ہے. فرسٹ پروز، سیکنڈ پوئٹری، تھرڈ گرامر، فورتھ نان ڈیٹیل. یہ 4 سیکشن آپ کو پڑھنا ہے. اب جو سیکشن ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے پوئٹری. پروز کے بھی سیکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں. یوٹیوب پہ سارے ویڈیوز اپلوڈ ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں سارے ویڈیوز کی لنک موجود ہے. اب ہم کو پڑھنا ہے پوئٹری سیکشن. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پوئٹری سیکشن. پوئٹری سیکشن پوئٹری سیکشن میں ٹوٹل 6 لیسن ہیں. یہ ہے فرسٹ پویم. فرسٹ پویم کا نام ہے الحمدو. سیکنڈ پویم کا نام ہے احبو. تھرڈ پویم کا نام ہے شابن نبیل. فورتھ پویم کا نام ہے ایھا الطلاب. ففتھ ون پویم کا نام ہے جاریون. سکس ون پویم کا نام ہے الحاسوب. اس میں سے ہم فرسٹ پویم الحمدو پڑھ چکے ہیں. اس کا ویڈیو تیار ہے، ڈسکرپشن میں موجود ہے. اب جو ہم پویم پڑھ رہے ہیں اس پویم کا نام ہے احبو. تو ہم اور آگے بڑھیں گے اور پویم پڑھیں گے اس وقت ہم. جی، جیسے آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے پویم کا نام احبو. یہاں پہ دیکھیے احبو پویم کے ورسز لکھے ہوئے ہیں جس میں ٹوٹل 6 ورس ہے، 6 اشعار ہیں. فرسٹ ون احب اللہ والرسول احب الدین والعمل. سیکنڈ احب العلم من ولع احب الجد للکسل. اس کے بعد تھرڈ پویم ہے احب الصدق فی قولی وقولی یشبہ العسل. فورتھ ورس ہے احب القول مختصرا وفعلا ناشطا عجلا. اس کے بعد ففتھ ون ورس ہے احب الفکر فی آیاتی ربی بکرتن اصیلا. سکس ون ورس ہے احب المشہد الطبعی احب الجو معتدلا. تو یہ تھی پویم. اب ہم اس کا ٹرانسلیشن معلوم کریں گے. احب اللہ والرسول. احب میں چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں. اللہ اللہ واو کے معنی واو. الرسول رسول سے، میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں. احب میں محبت کرتا ہوں. الدین دین، والعمل اور عمل کرنے کو. پورا ترجمہ ہے میں دین سے اور دین پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں.
उहिब्बु मैं मोहब्बत करता हूँ, अल इल्म इल्म को, नॉलेज को, मिन से, वलाइन शौक, उहिब्बुल इल्म मिन वलाइन मैं इल्म से मोहब्बत करता हूँ, दिल से और शौक से। उहिब्बु अल जिद्दा लल कसला, उहिब्बु मैं मोहब्बत करता हूँ, अल जिद्दा मेहनत को, ला नहीं, अल कसला सुस्ती को। मैं मेहनत करने को पसंद करता हूँ, सुस्ती को पसंद नहीं करता हूँ। उहिब्बु सिद्क़ फी क़ौली व क़ौली यशबहुल अस्ला, उहिब्बु मैं चाहता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, अस्सिद्क़ सच्चाई को, फी के माने में, क़ौली बात, मैं अपनी बात में सच्चाई पसंद करता हूँ। व क़ौली यशबहु अल अस्ला, और मेरी बात यशबहु जैसी है, अल अस्ला शहद, और मेरी बात शहद जैसी है। फोर्थ वन है उहिब्बु अल क़ौल मुख्तसरा, उहिब्बु मैं चाहता हूं, मैं पसंद करता हूं, अल क़ौल बात, मुख्तसरन शॉर्ट, मैं मुख्तसर गुफ्तगू करना पसंद करता हूं। व फ़िअलन नाशितन अजला, व फ़िअलन काम, नाशितन चुस्ती, अजलन जल्दी से, और मैं चुस्ती के साथ जल्दी से काम करना पसंद करता हूं। उहिब्बुल फिक्रा फी, उहिब्बु मैं पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं, अल फिक्रा गौर फिक्र करने को, फी में, आयाती आयात, आयात के माने निशानियों, मैं निशानियों में गौर फिक्र करना पसंद करता हूं। किसके निशानियां? रब्बी मेरा रब, बुकरतन सुबह, असीलन शाम, मैं सुबह शाम अपने रब के निशानियों में गौर फिक्र करने को पसंद करता हूं। 6 वन है उहिब्बु अल मशहद अत्तबई, उहिब्बु अल जव्व मुअतदिलन, मैं पसंद करता हूं, उहिब्बु मैं पसंद करता हूं, अल मशहद, अल मशहद मंजर, अत्तबई फित्री, पूरा तर्जुमा है मैं फित्री मनाजिर को पसंद करता हूं। उहिब्बु अल जव्व मुअतदिलन, उहिब्बु मैं पसंद करता हूं, अल जव्व मौसम, मुअतदिलन मुअतदिल मौसम को मैं पसंद करता हूं। ये थी पोयम और पोयम के ट्रांसलेशन। उसके बाद हम इसकी समरी पढ़ेंगे कि इस पोयम की समरी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोएट्री सेक्शन की सेकेंड पोयम जिसका नाम है उहिब्बु, अभी आप वो पोयम पढ़ रहे थे। अब हम इंशाल्लाह उसकी समरी पढ़ेंगे। इस पोयम में शायर चंद चीज़ों को पसंद करता है। वो बज़ाहिर ये कहना चाह रहा है कि हर स्टूडेंट को ये चीज़ पसंद करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ शायर ये कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। हर स्टूडेंट को ये काम करना चाहिए। हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह से भी मोहब्बत करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करे, क्योंकि ये ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करेगा उसका ईमान कामिल नहीं होगा। शायर कहता है कि मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करता हूँ, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों से मोहब्बत करें। लेकिन उसके कुछ तकाज़े हैं, सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। क्या मतलब? मतलब ये है कि हम हर काम वही करें जो हमारे नबी को पसंद था। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें, तब हम कह सकते हैं कि हम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। आगे शायर ये कहता है कि मैं इल्म से भी मोहब्बत करता हूँ, नॉलेज को चाहता हूँ।
آپ کی بھی ذمہ داری ہے، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم علم سے بہت محبت کریں. اور علم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں، دل سے اس کو چاہیں، دل سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. صرف کوشچن آنسرز پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پوری کوشش کریں اور دن رات اس کے لیے لگا دیں. صرف ایگزام کی حد تک نہیں، بلکہ پورا سال علم کے لیے محنت کریں. اس کے بعد شاعر یہ کہتا ہے کہ میں سچائی کو پسند کرتا ہوں، جھوٹ بات کو پسند نہیں کرتا. اور یقیناً اسلام بھی ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بات کہیں، جھوٹ کبھی نہ کہیں. سچ بات گویا کہ شہد جیسی ہے. سچ بات سے انسان ہر مشکل سے نجات پا سکتا ہے، لیکن جھوٹ سے انسان نجات نہیں پا سکتا. اور جو بھی گفتگو کرے، بات چیت کرے، مختصر کرے، شارٹ کرے، زیادہ لمبی بات نہ کرے. اس کے بعد شاعر یہ کہنا چاہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہوں، جتنے بھی اللہ کے نشانیاں ہیں. بلکہ دیکھیں آسمان، دیکھیں اللہ نے بغیر پلرز کے، بغیر کسی ستون کے اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کیا، زمین کو پیدا کیا. بلکہ ہم خود انسان ایک اللہ کی نشانی ہے. ہم سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کریں گے تو اللہ کی قدرت پر یقین ہوگا، اللہ کے ایک ہونے پر یقین ہوگا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے وہی سب سے بڑا عقل مند ہے. تو اس پویم میں شاعر اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم کن چیزوں کو پسند کریں. ہم سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور دین کو بھی پسند کریں، دین پر عمل کرنے کو بھی پسند کریں. ہم صرف نام کے دیندار نہیں ہونا ہے، نام کے مسلمان نہیں ہونا ہے، بلکہ عمل کے مسلمان ہونا ہے. عمل کر کے بتانا ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بھی ہیں اور سچے اور پکے عاشق رسول بھی ہیں. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے انگلش میں سمری ہے. ابھی آپ اردو میں سمری سنے تھے، جس کو اردو میں آتا ہو وہ اردو میں لکھے، اور جس کو انگلش میں آتا ہو وہ انگلش میں دیکھیں، اور انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. اون لینگویج میں لکھنا ہے سمری. اور یہ سمری کون سے بٹ میں آئیں گی، اس کے لیے آپ وہ فائنل ایگزامز کی تیاری کے لیے جو ویڈیوز بنائے گئے ہیں وہ سارے ویڈیوز دیکھیں. یہ انگلش میں سمری ہے، لیکن ایک بات دھیان میں رکھیں، رومن میں ہرگز نہ لکھیں. کوئی بھی آنسر رومن میں لکھنا نہیں ہے. چلیے ہم اور آگے بڑھیں گے. اب اس پویم کے ایکسرسائز شروع ہو رہے ہیں. دیکھیے سب سے فرسٹ بٹ ہے ورڈ میننگ، جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ورڈ میننگ. ہم یہ بٹ پڑھیں گے ابھی، ورڈ میننگ. کچھ ورڈ ہے اور اس کے میننگ لکھے ہوئے ہیں. یہ فائنل ایگزام میں یا کسی بھی ایگزام میں یہ کون سے بٹ میں آئیں گے، اس کے لیے آپ ایگزامز کی تیاری کے لیے جو ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں وہ سارے ویڈیوز دیکھیں، اور نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. احبو، احبو کے معنی ہے میں چاہتا ہوں. الدین، دین کے معنی ہے دین، ریلیجن. العمل، العمل کے معنی ہے کام. العلم، علم کے معنی ہے نالج. ولعن، ولعن کے معنی ہے دل سے، شوق سے. الجد، جد معنی محنت. الکسل، سستی. الصدق، سچائی. اس کے بعد قول، بات، گفتگو. یشبہ، جیسی ہے. العسل، شہد. المشہد الطبعی، فطرتی مناظر. الجو، موسم. معتدلا، صاف. الفکر، غور و فکر. آیات، نشانیاں. یہ تھی ورڈ میننگ کی بیٹ. چلیے ہم اور آگے بڑھیں گے. اس کے بعد
जो बिट हमको पढ़ना है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सिंगुलर और प्लूरल की बिट है। ये लाइन सिंगुलर है और ये लाइन प्लूरल है। रसूलुन, रसूल उसका प्लूरल है, उसकी जमा है रुसुल। सेकेंड वन, दीनुन उसका प्लूरल है अदियान, दीन के माने मजहब। इल्म, इल्म नॉलेज, तालीम, उसकी जमा है, उसका प्लूरल है उलूम। कौलुन, कौल बात, उसकी जमा आती अक़वाल। फ़िअलुन काम, उसकी जमा है अफ़आल। फ़िक्र गौर व फिक्र करना, सोचना, उसकी जमा है अफ़कार। उसके बाद ये लाइन सिंगुलर है और उसके बाद बाजू प्लूरल है। आयतुन, आयत जैसे कुरान पाक में है आयत, या इसका तर्जुमा निशानी भी है। आयात इसका प्लूरल है आयात। मशहद मंजर। मशाहिद इसकी जमा है। मदीनतुन शहर, उसकी जमा है मुदुन। अबुन उसकी जमा आबा वालिद। उम्मुन माँ, उसकी जमा है उम्महात। खरीबुन खरीब नजदीक, उसकी जमा है अक़रबा। ये थी बिट सिंगुलर और प्लूरल की। ये सच सिंगुलर है और इस तरफ दो है, सिंगुलर, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ भी है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो बिट हमको पढ़ना है वो है अपोजिट वर्ड्स। ये भी बहुत आसान है। फिर भी मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि वो सारे वीडियोस देखें एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो बनाए गए हैं, ताकि आपको मालूम हो कि कौन सी बिट में कौन से क्वेश्चंस और आंसर आएंगे। अल जिद्दू मेहनत, इसका अपोजिट है अल कसलु सुस्ती। अल इल्मु नॉलेज पढ़ाई। अल जहलु कुछ भी ना पढ़ना। अस्सिदक़ु सच्चाई। अल किज़्बु झूठ। मुख्तसरन शॉर्ट। मुफस्सलन लंबी गुफ्तगू, लॉन्ग गुफ्तगू। बुकरतन सुबह। असीलन शाम। ये थी बिट अपोजिट वर्ड्स की। उसके बाद हमको और आगे बढ़ना है, देखेंगे और आगे कौन सी बिट है। तो ये बिट है जो कि बहुत ही आसान है, हर पोएम में आप पढ़ रहे थे। यहाँ पे लास्ट में मैं आपको एक हिंट भी बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये वर्स कौन से पोएम की है। गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस। आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके थे। वर्सेस, पोएम के वर्सेस का रेफरेंस लिखना है कि कौन सा शेर कौन सी पोएम का है। यहां तो एक ही पोएम के 2 वर्सेस लिखे हुए हैं, लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में 6 पोएम में से किसी भी पोएम के वर्सेस आ सकते हैं। आपको पहचानना होगा कि वो वर्स कौन सी पोएम के हैं। मैं आपको हिंट बताऊंगा, जैसे पहली पोएम में भी बताया था, इसमें भी एक हिंट बताऊंगा जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्स कौन सी पोएम का है। आप पूरे पोएम में जो हिंट बताया गया वो गौर से याद सुने और याद रखें। उहिब्बु अल्लाह व रसूला उहिब्बु अद्दीना वल अमला। जब आप ये पहचान लिए कि ये कौन सी पोएम के, तो उसके बाद आपको आंसर लिखना है ये हाजा अश्शेर मिन अन-नज़म उहिब्बु। ये आप फर्स्ट ईयर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे थे तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आसान है। 10 मरतबा अगर लिखेंगे आपको आसानी से लिखने आ जाता है। एक बात याद रखें, जब तक आप लिखेंगे नहीं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको आंसर लिखना मुश्किल होगा। उसके बाद और एक वर्स है और एक शेर है, उहिब्बु अल इल्म मिन वलइन उहिब्बुल जिद्द अल कसला। ये पूरा एक शेर है, ये याद रखें, ये पूरा एक शेर है। ये कौन सी पोएम का है, पहचानने के बाद आपको आंसर लिखना है इस तरीके से। हाजा अश्शेर मिन अन-नज़म। हाजा माने ये, शेर माने शेर यानी वर्स, मिन माने की, नज़म माने पोएम। ये शेर फला पोएम की है। उसके बाद पोएम का नाम लिखना है उहिब्बु। उहिब्बु पोएम का नाम लिखना है। शायद आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब मैं आपको वो हिंट बताऊंगा जिस हिंट के जरिए से आप पहचान सकते हैं कि उहिब्बु के वर्सेस
पहचानने का तरीका क्या है। तो देखिए यहां पे है पोयम, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसको पहचानने का तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस पोयम का शुरू का फर्स्ट लेटर हमजा है, सब में हमजा है, शायद आपको दिखाई दे रहा है। यहां पे भी हमजा 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 हमजा। शुरू में हमजा आ जाए तो आप समझना कि ये पोयम है उहिब्बु। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है अच्छे तरीके से। और एक लास्ट में लाम, यहां पे लाम है, बाकी सब में लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, ये भी है लाम अलिफ। यहां पे सिर्फ लाम है। दो तरीके हैं, शुरू में हमजा आएगा या लास्ट में लाम अलिफ आएगा। शुरू में हमजा और लास्ट में लाम अलिफ आए तो समझ जाना कि ये पोयम है उहिब्बु। तो चलिए हम पहले की जगह पे ही जाएंगे जहां पढ़ रहे थे। तो ये बिट थी रेफरेंस की, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। उसके बाद जो बिट हमको पढ़नी है वो है आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर लिखना है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है आंसर द क्वेश्चन। जी ये भी बहुत आसान है अगर आप गौर से सुनेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपसे गुजारिश करूंगा लिखने की प्रैक्टिस करें। एक आंसर को मिनिमम 5 टाइम लिखें तो ही आपको आसान होगा आंसर लिखना, वरना बहुत मुश्किल होगा। हम समझते हैं देख के ये बहुत आसान है, हम लिख ले सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको लिखने में मुश्किल होगी, क्योंकि ये नई लैंग्वेज है आपके लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मन, किसको, युहिब्बु चाहता है, अशाइरु पोइट शायर, शायर किसको चाहता है। ये मन हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करिए। युहिब्बु अशाइरु शायर चाहता है, अल्लाह अल्लाह को, वो माने और रसूला और रसूल को। शायर अल्लाह को चाहता है और रसूल को चाहता है। जिस तरह शायर चाहता है उसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बे इंतहा मोहब्बत रहिए। हमारा ईमान कामिल उसी वक्त होगा, हमारा ईमान कामिल उसी वक्त होगा जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बे इंतहा मोहब्बत करें, सिर्फ कहने के एतबार से नहीं, दावे के एतबार से नहीं, अमली एतबार से। सेकंड क्वेश्चन है अ तुहिब्बुद्दीन वल अमला। ये देखिए अ के माने क्या, तुहिब्बु आप चाहते हैं, अद्दीन दीन, वो के माने और, अमल माने अमल करने को। क्या आप दीन और दीन पर अमल करने को पसंद करते हैं, चाहते हैं, पसंद करते हैं। देखिए उसका आंसर है, देखिए नाम, नाम के माने हाँ, उहिब्बु मैं पसंद करता हूं दीन को और दीन पर अमल करने को। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मता तुहिब्बु अल फिक्रा फी आयातिल्लाह। मता के माने कब, तुहिब्बु आप पसंद करते हैं, चाहते हैं, अल फिक्रा गौर करना, फी के माने में, आयात के माने निशानियां, अल्लाह के माने अल्लाह। आप अल्लाह के निशानियों में कब गौर फिक्र करना पसंद करते हैं। देखिए मता हटा दीजिए। उसके बाद यहां पे जो क्वेश्चन में तुहिब्बु है ना, ता हटा के अलिफ लिख दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। उहिब्बु मैं चाहता हूं, अल फिक्रा गौर फिक्र करना, फी के माने में, आयत के माने निशानियां, अल्लाह के माने अल्लाह, दाइमन हमेशा, मैं अल्लाह के निशानियों में हमेशा गौर फिक्र करना पसंद करता हूं। उसके बाद
फोर्थ क्वेश्चन है अय्यु जव्विन तुहिब्बु, अय्यु कौन सा, जब मौसम, तुहिब्बु आप पसंद करते हैं। पूरे मीनिंग है आपको कौन सा मौसम पसंद है। उहिब्बु मैं चाहता हूं, अल जव्वा मौसम, मुअतदिलन मुअतदिल साफ अच्छा, मैं अच्छा मौसम पसंद करता हूं। फिफ्थ वन है हल तुहिब्बु अल मशहदा अत्तबई, हल के माने क्या, तुहिब्बु आप चाहते हैं, अल मशहद मंजर, अत्तबई फित्री खुदरती, क्या आप खुदरती मंजर पसंद करते हैं, क्या आप खुदरती मंजर पसंद करते हैं। हल हटा दीजिए। नाम हाँ, उहिब्बु यहां पे देखिए तुहिब्बु, तुहिब्बु के माने तुम, उहिब्बु के माने मैं, हाँ मैं चाहता हूं, मैं पसंद करता हूं खुदरती मनाजिर। तो ये बिट थी क्वेश्चन आंसर्स की जो अभी आप पढ़ चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि हर आंसर की मिनिमम 10 टाइम प्रैक्टिस करें लिखने की, तो ही आप एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद और एक बिट है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है आंसर द, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड में आपको आंसर लिखना है। ये बिट, ये क्वेश्चंस कौन से बिट में आएंगे फाइनल एग्जाम में, इसके लिए फाइनल एग्जाम्स के लिए, बल्कि हर एग्जाम के लिए जो वीडियोस तैयार किए गए हैं वो आप देखें। हल तुहिब्बु अल जव्वा मुअतदिलन, हल के माने क्या, तुहिब्बु आप चाहते हैं, अल जव्वा मौसम, मुअतदिलन साफ, क्या आप साफ सुथरा मौसम पसंद करते हैं। उसका आंसर है नाम, हाँ मैं साफ सुथरा मौसम पसंद करता हूं, माहौल या मौसम। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बिअय्यि शैइन यशबहुल कौला, बिअय्यि शैइन किस चीज से, यशबहु मुशाबे है, अल कौला गुफ्तगू बातचीत किस जैसी है, बातचीत किस जैसी है, मतलब ये कि हम पोएम में पढ़े थे कि बातचीत हमारी, मेरी बातचीत शहद जैसी है, तो क्वेश्चन वो ये बातचीत किस जैसी है। उसका आंसर है मिनल अस्ल, शहद जैसी है, यानी इतनी मिठास रहना चाहिए गुफ्तगू में, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं। लड़की जब किसी और अजनबी से बात करे तो मिठास, गुफ्तगू में मिठास लाकर बात नहीं करना चाहिए, कड़वापन लाकर बातचीत करनी चाहिए, सख्ती के साथ बातचीत करनी चाहिए, इस्लाम का हुक्म है ये। थर्ड क्वेश्चन है अ तुहिब्बुद्दीन व दुनिया, अ के माने क्या, तुहिब्बु आप चाहते हैं, अद्दीन दीन, वो के माने और, दुनिया माने दुनिया, क्या आप दीन और दुनिया दोनों को चाहते हैं। उसका आंसर है नाम, हाँ दीन और दुनिया में दोनों को चाहता हूं। उसके बाद फोर्थ वन क्वेश्चन है कैफा तुहिब्बु अल इल्म, कैफा के माने कैसा, तुहिब्बु आप पसंद करते हैं, इल्म माने नॉलेज, आप इल्म को कैसा पसंद करते हैं। उसका आंसर है मिन वलाइन, दिल से चाहता हूं। आप इल्म को कैसे चाहते हैं, मिन वलाइन, दिल से चाहता हूं। उसके बाद क्वेश्चन है फिफ्थ वन हल अस्सिद्क़ु शैउन महबूबुन, हल माने क्या, अस्सिद्क़ सच्चाई, शैउन चीज, महबूब पसंदीदा, क्या सच्चाई पसंदीदा चीज है। उसका आंसर है नाम, हाँ सच्चाई पसंदीदा अमल है, पसंदीदा चीज है। ये थी आपकी वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद जो बिट हमको पढ़नी है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को फिल करना है, पुर करना है। तो चलिए हम ये बिट भी पढ़ेंगे। उहिब्बु डैश मिन वलाइन, मैं पसंद करता हूं, डैश दिल से, कौन सी चीज है, अल इल्मु, इल्म को पसंद करता हूं। सेकंड डैश वर रसूला, और रसूलुल्लाह से, इसका आंसर है देखिए उहिब्बु अल्लाह, उहिब्बु मैं चाहता हूं अल्लाह को और रसूलुल्लाह को। ये बिट एग्जाम के कौन से बिट में आएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स कौन से बिट में आएंगी, इसके लिए आप एग्जाम्स के तैयारी के लिए जो वीडियो बनाए गए हैं वो देखें।
थर्ड वन, उहिब्बु अल फिक्र फी डैश रब्बी बुकरतन व असीला, मैं पसंद करता हूं गौर फिक्र करने को सुबह और शाम अपने रब के, क्या है डैश, आयात, निशानियों में। मैं अपने रब के निशानियों में गौर फिक्र करने को पसंद करता हूं, सुबह में भी और शाम में भी। उहिब्बु, उहिब्बु के बाद डैश मुख्तसरन, मैं पसंद करता हूं अल कौल गुफ्तगू बातचीत, मैं मुख्तसर बात, शॉर्ट बात करने को पसंद करता हूं। उसके बाद फिफ्थ वन है अल मशहद अत्तबाई डैश अल मशहद अत्तबाई, डैश के बाद है अल मशहद अत्तबाई, आयात, आयात, आयात के माने हैं निशानियां। नहीं, यहां पे कुछ गलती है, अल मशहद अत्तबाई कुदरती मनाजिर को मैं पसंद करता हूं, यहां पे उहिब्बु आना चाहिए, आयात नहीं है, ये रॉन्ग है। उहिब्बु अल मशहद अत्तबाई, मैं कुदरती मनाजिर को पसंद करता हूं, यहां पे उहिब्बु, कौन सा उहिब्बु, यहां पे जैसे आपको दिखाई दे रहा उहिब्बु, यहां पे उहिब्बु लिखना है। शायद ये बिट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। उसके बाद जो बिट हमको पढ़नी है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस एंड एक्सप्लेन। ये आपके फाइनल एग्जाम में, बल्कि हर एग्जाम में सबसे फर्स्ट बिट रहेंगी, ये बिट नंबर 1 रहेगी। इसके लिए इस पे ज्यादा तवज्जो दें, अच्छी तरह पढ़ें, बहुत आसान है और ज्यादा मार्क्स की है। आप देखें वो वीडियोस, उसके कितने मार्क्स है, कैसा पढ़ना है, इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट उहिब्बु अल्लाह, यहां पे फिल करना है, यहां पे कौन सा वर्ड डिलीटेड है, तो देखिए नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है, आंसर ANS आंसर, उहिब्बु अल्लाह वर रसूला, यहां पे वर रसूल डिलीट है, आपको लिखना होगा उहिब्बु अल्लाह वर रसूला, उहिब्बु अद्दीन वल अमला, उहिब्बुल इल्म मिन वलाइन, उहिब्बुल जिद्द लल कसला। ये कंप्लीट करने के बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी करना है आपको, सिर्फ इन 2 वर्सेस का एक्सप्लेनेशन लिखना है। और ये एक्सप्लेनेशन आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे उर्दू, चाहे अरबिक, चाहे इंग्लिश, रोमन नहीं, लेकिन ये वर्सेस आपको अरबिक में ही लिखना है, ये ओन लैंग्वेज में नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन ओन लैंग्वेज, और ये वर्सेस अरबिक में ही लिखना है। जहां तक मेरा ख्याल है ये बिट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। आपसे गुजारिश है कि इसके लिए जो बुक तैयार की गई है, आपके एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल तैयार की गई है, वो स्टडी मटेरियल आप हासिल करें और हमें इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए, हो सके तो सबको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।